हाँ बताइए क्या बात करना चाहें, कुछ सजेस्ट कीजिए। सर मनी एंड बैंकिंग डिस्कस करना था आज। हाँ कोई इशू बतलाइएगा, कहाँ से शुरू करना है या जो पहले किया हुआ उसके बाद कुछ करना है। और सर बैंकिंग डिस्कस कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक के जो चेंजिंग रोल्स हैं इन द करंट टाइम्स आल्सो। अच्छा तो एक और नई चीज थोड़ी सी करते हैं जी कंटिन्यू करते हुए। यस सर। डेफिसिट फाइनेंसिंग की हमने बात की थी राइट। और कैसे फाइनेंस किया जाता है इसके बारे में बात की थी। हाँ जी। ठीक है ना। यस सर। तो एक थोड़ा सा और खेल खेलते हैं छोटा सा, जिससे और कुछ क्लियर होगा। मान लीजिए मैं अपना एक एनुअल बजट बनाना चाहता हूँ और उस बजट बनाने में मेरे को आप सबकी हेल्प चाहिए। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। मेरी कुछ इनकम है, हाँ जी सर ठीक है। मैं उसको कैसे खर्च करूं इसके बारे में मैं एक अपना प्लान बनाना चाहता हूं। उस बारे में आपकी हेल्प चाहिए। कुछ बातें मेरे सामने हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड लेट्स कॉल इट प्लान ए। ओके। एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिएगा आप, उसका हेडिंग दे दीजिए प्लान ए। प्लान ए में अब मेरी करंट इनकम है मान लीजिए 10,000 रुपीज। तो पहली एंट्री है करंट इनकम 10,000 रुपीज। Next entry is I have to decide on consumption and I have a very clear idea कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर इनकम एक रैपिड रेट से बढ़े। So I have to decide how much should I spend, how much should I save out of my current income. Yes sir. So my current income is 10,000. I keep my current consumption as also at 10,000. Okay. Okay, so current income and current consumption दोनों 10,000. Yeah, same. Same है. Result is saving is 0. Okay. Saving is 0. Fine. Investment apparently would be 0. Yeah. ठीक है. I don't borrow anything, so borrowing would be 0. Sir. Now as a result in the subsequent round अगले साल यही repeat हो जाएगा। जितना मैं कमाऊंगा उतनी consumption हो जाएगी और मेरी income में कोई increase नहीं होगा। ठीक है। Okay. Now let's go for plan B. In plan B, I have current consumption as 10,000, current income as 10,000, and let current consumption be 9,000. अभी क्या होगा? Investment is 1,000. Saving is 1,000, and as a result, investment is 1,000. Yep. So in the borrowing is 0. So my total investment remains 1,000. Okay. It will lead to further increase in my income in the next round. ठीक है ना? Yes. Sir. इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगी, अगले साल मेरी इनकम 10,000 प्लस होगी। Okay. Now let there be a plan C also, third plan, third option. Current income is 10,000, current consumption is 11,000. अब आगे रिजल्ट क्या होगा? Negative saving. There would be this saving or negative saving of 1,000. Yeah. Borrowing is 0. My investment would be Nothing. My investment would be 0. minus 1,000. Minus 1. अच्छा, okay. Minus saving is Investment would be minus 1,000. जी. Okay. Which means in the next round, my income will fall now. Okay. Okay. That will be a plan D also. Okay. And in plan D, my current income is 10,000. Okay. My current consumption is 9,000. Okay. I also borrow 5,000. Okay. So repeat करें sir please. My current income is 10,000. Fine. Current consumption is 9,000. 9,000. Saving is 1,000. Yeah. I also borrow 5,000. Okay. So my total investment in this plan is how much? 6,000. Total investment in this plan would be
1,000 plus 5,000, Yeah, 6,000. 6,000. 6,000. Okay. जी. I have one more plan. Current income is 10,000. Okay. Current consumption is 11,000. हाँ. I borrow 5,000. हाँ. Now my net investment in this plan would be 4,000. 4,000. Yes. Now, friends, I have to choose among all these different plans. My goal is very clear. I want to have fast increase in my future income. Okay. मैं करंट कंजम्पशन को रोकने के लिए तैयार हूं अगर इससे मेरी फ्यूचर इनकम बढ़ती है तो. Okay. Okay. And one assumption I am making, assumption is cost of money is less than the expected returns from investment. Okay. Fine. Fine. ये क्लियर हो गया ये पॉइंट. हाँ, ठीक है. I can borrow at 6% and I am sure to get a return of 8, 9, 10%. Fine. That's the assumption I am making. ठीक है. Now, friends, which of these plans will you recommend for me? Plan Okay. B. प्लान बी मुझे एक बार लिखना पड़ेगा. क्या था निशु मैम, प्लीज बताएंगे. प्लान बी में इनकम वाज 10,000. कौन सा प्लान मेरे Income को? was बी छूट गया. 10,000. Consumption was 9,000. हाँ. Investment was 1,000. Obviously, because हाँ. बोरोइंग्स वाज 0. yeah, ओके. प्लान 1 और प्लान बी में बोरोइंग 0 है. yeah. 3 में तो खैर आ ही नहीं सकती, 3 नेगेटिव हो में आई नहीं जाएगा. सकती, माइनस में ऑलरेडी. माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मनी इज लेस देन. हाँ सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर? अब लिख लिया क्वेश्चन. मेरे को एक प्लान चूज करना है. जी. मेरा ऑब्जेक्टिव है रैपिड इंक्रीज इन इनकम इन फ्यूचर. So plan D. प्लान डी से क्या होगा? So उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, so returns will be more. उसमें बोरिंग भी है. उसमें बोरिंग भी है. बोरिंग है ना उसमें? हाँ जी सर, 5,000 borrowing, 6%. 5,000 बोरिंग है. तो आप क्या बोरिंग प्रेफर करेंगे या नहीं? Sir, if income increases more, even after paying the rate of interest. तो I सर think जैसे आपने जो assumption लिया ना सर, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस देन द रेट ऑफ रिटर्न, तो उस हिसाब से बोरोइंग इज गुड. बोरोइंग में तो Borrowing Because is good. MEI, sir, MEI is more ना, यहाँ पे rate of return is more than the rate of borrowing. तो advisable होगा borrowing country के लिए. बोरिंग करना एडवाइजेबल होगा. हाँ जी. जी. लेकिन बोरिंग के साथ साथ ये भी जरूरी है, देयर शुड बी नेट सेविंग ऑन द करंट अकाउंट. Yeah. अगर करंट अकाउंट पर डिस सेविंग हो रही है देन वी कांट एक्सेप्ट इट. सर प्लान डी में नहीं हो रही है saving. 1,000 हम सेव भी कर रहे हैं आफ्टर 9,000 कंजम्पशन. सो व्हाट इज द लेसन वी आर गेटिंग? बोरिंग इज नॉट अ बैड प्रोपोजिशन. यस. Debt is not a bad proposition. It's not a bad proposition, right? And as a matter of fact, debt holds the key to growth. Yeah. ओके. अगर किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी गवर्नमेंट ने ग्रो करना है तो उस डेट कोई बात नहीं है. लेकिन ये तब बुरी बात हो जाती है. कब ये बुरी बात हो जाती है? जब हमारे कॉस्ट ऑफ डेट इज हायर देन द रेट ऑफ रिटर्न. Also, we don't have any savings in the economy. और थोड़ा क्लियर कीजिए. Sir, अगर rate of return is less than the rate of interest, So and also we don't have savings. तो two things are, जी. if you compare plan D and plan E, Yeah. जहाँ हमारी करंट इनकम 10,000 है, करंट कंजम्पशन 11,000 है, 11,000 है, right? बोरिंग 5,000 है, तो नेट इन्वेस्टमेंट खाली 4,000 रह जाती है. Yeah. तो अगर हम बोरो करंट कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, दिस कुड प्रूव डिजास्टर्स. Yeah. But if we are borrowing for investment, this is advisable. ओके. Right. So lesson is debt is good, provided it adds to capital formation in the economy and not for current consumption. Not for current consumption, right? अच्छा सर, इसमें एक चीज और पूछनी थी कि
सर जैसे जो कहते हैं ना कि बोरोइंग टू पे द बटलर, है ना, इट्स नॉट एडवाइजेबल। हम अपने उसको तो दैट सिंपली मींस सर जो अभी सिचुएशन है हमारी, वो तो हम लोग करंट अकाउंट में डेफिसिट में ही चल रहा है चीजें, एंड देन स्टिल टू मीट दैट डेफिसिट गवर्नमेंट हैज टू बोरो। तो व्हाट डू यू से उसके अंदर आप अब आप सामने आगे पिक्चर आ गई है, आप जी। कमेंट कर सकते हैं। सर मैं कि बताऊं सर, मैं कोशिश करूं हाँ बताइए। सर, इसमें अगर हम पेइंग टू द बटलर है तो दिस गोज इन आवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, मे बी दिस वे। Let's go to the government budget and use Okay. that language now. ओके जी जी In terms of government budget, current expenditure and current income constitute revenue budget. राइट। yes So on revenue budget, we need to have a revenue surplus. yes If we have revenue surplus and we add deficit financing to it or fiscal deficit to it, it's a guarantee for fast growth in the future. राइट। If we have a revenue surplus. But in case we are indulging in revenue deficit, अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो रिजल्ट क्या होगा? तो कैपिटल के ऊपर लोड पड़ेगा, तो बोरो करेंगे, जी उससे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ओके। खाली करंट कंजम्पशन पूरी होगी। राइट। तो सर आपका ये कहना हो रहा है कि रेवेन्यू अकाउंट के अंदर वी शुड हैव सरप्लस और कैपिटल अकाउंट के अंदर वी कैन शुड हैव डेफिसिट, दैट इज अ साइन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। ऐसा कुछ कह सकते हैं? Important message is that for growth, revenue account is very significant entry. ओके उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रेवेन्यू अकाउंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक्सपेंडिचर पर चेक रखना। ओके राइट। रेवेन्यू अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने एक्सपेंडिचर पर चेक कर रखना। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि उसके कुछ कमिटेड एक्सपेंडिचर होते हैं जिसे वो कम नहीं कर सकती। एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी सैलरी, मेरी पेंशन गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, रिड्यूस नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली राइट। सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है उसे रिमूव नहीं कर सकती। डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसे कम नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है उसे कम नहीं किया जा सकता। रिजल्ट क्या है? गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर टर्म्स में बहुत कम हो जाती है और इन सबको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को नई करेंसी छापनी पड़ती है, which we call fiscal deficit. या सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था जो अभी एक किसी Yeah. क्वेश्चन बैंक में आया था। बताइए। कैन द गवर्नमेंट हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द रेवेन्यू डेफिसिट? Yes. तो सर उसकी थोड़े से एग्जांपल्स चाहिए, थोड़ा पता लगे कि कैसे। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू अकाउंट बना लीजिएगा। हाँ जी। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट्स आर 10,000, नोट कर लीजिए। रेवेन्यू रिसीट्स आर 10,000, ओके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 9,000, ओके there is a revenue surplus of 1,000. या Capital receipts are 5,000. ओके Capital receipts are 5,000. Capital And- expenditure is 9,000. ओके ओके अभी रिजल्ट क्या होगा आपका? 4,000 इज द डेफिसिट। डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। पर अगर सर हम रेवेन्यू ओके हम उससे माइनस कर लेंगे तो 3,000 डेफिसिट बच जाएगा। फिस्कल डेफिसिट आपका 4,000 आ गया, हाँ जी। जबकि रेवेन्यू अकाउंट का आपका सरप्लस है। हाँ जी। इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट के बिना भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। ओके तो ठीक सर है। हम उसको मेक गुड नहीं करेंगे फिस्कल डेफिसिट को, स्ट्राइक अगेंस्ट द सरप्लस, उसके अंदर जो सरप्लस है रेवेन्यू में उसको यूज अप नहीं कर सकते हम यहाँ पे? उसे यूज कर लिया ना हमने, हाँ जी। उसे हमने यूज कर लिया, ओके उसे यूज कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ओके और कैपिटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू सरप्लस भी यूज किया हमने और बोरिंग भी करी। ओके So net result is we have a fiscal deficit which is financed by borrowing by the government. बट सर ये किन कंडीशंस में किया जाता है? व्हाट इज द सिचुएशन जब कंट्री को ये करना पड़ता है कि रेवेन्यू सरप्लस में आ रहा है मगर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1947 से लेकर आज तक कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं आया, दैट इज व्हाई क्वेश्चन मार्क था। या कोई भी गवर्नमेंट इस लालच को नहीं छोड़ सकती कि जो पैसा उसके पास आ गया है उसे वो अपनी मर्जी से खर्च नहीं करे। जब रेवेन्यू सरप्लस उनको नजर आता है तो हर एक पॉलिटिकल छोटी छोटी सिचुएशंस पर पैसा खर्च कर दिया जाता है। राइट राइट। और गवर्नमेंट इनवेरिएबली रेवेन्यू डेफिसिट में चली जाती है और रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिस्कल डेफिसिट की जरूरत हो जाता है। राइट। तो आपने जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बताया उसकी रिस्पॉन्स आपको दे रहा हूँ। हाँ जी। तो सर इंडिया पे एप्लीकेबल तो नहीं होगा ये कि रेवेन्यू डेफिसिट तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं विद रेफरेंस टू इंडिया, सरप्लस तो हुआ ही नहीं रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट तो रहा ही रहा। बस थ्योरेटिकली इतने ही रिस्पांस दी जा सकती है जी। इंडिया के बारे में, और जब बात आएगी हम कर लेंगे। राइट। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लीजिएगा, उसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सर, द क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन वाज कि कैन अ कंट्री हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द रेवेन्यू डेफिसिट? हाँ, तो इसका क्या आंसर क्या दिया इन्होंने? सर आंसर नहीं मुझे मिला ना तभी आपको तंग कर रहे हैं। नहीं अभी क्लियर हो गया या so नहीं? everybody had a different answer, so नहीं कोई चॉइस ही नहीं है उसमें, नहीं डिफरेंट choices नहीं थी, this was a descriptive question। नहीं कोई किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ओके ओके, ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होता है। या मैं ये कहूँ सर कि एक किसी ने ये आंसर दिया था कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम कई बार फॉर द इनोवेशंस एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री वी कीप इम्पोर्टिंग थिंग्स, उसमें हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो डेफिसिट जो शो होता है दैट इज फॉर दी, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रोथ इंश्योर्ड होती है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं फिस्कल डेफिसिट, हालांकि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होता हमारा। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? उस सब की जरूरत नहीं है जी, उस सब की जरूरत नहीं है। आपका रेवेन्यू अकाउंट पर कंसंट्रेट कीजिए, कैपिटल अकाउंट पर कंसंट्रेट कीजिए, रेवेन्यू अकाउंट पर रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर करिएगा, और रेवेन्यू सरप्लस आप मान लीजिए। ठीक है सर। व्हिच मींस रेवेन्यू रिसीट्स आर मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दिस एग्जांपल वाज गुड। अब रेवेन्यू सरप्लस है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू सरप्लस को कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना चाहती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही नहीं करती है जितना रेवेन्यू सरप्लस है, गवर्नमेंट उससे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है। रेवेन्यू सरप्लस 1000 था, गवर्नमेंट 4000 मार्केट से बोरो भी कर लेती है, ठीक है। तो 5000 का खर्चा कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। या so 4000 is fiscal deficit and that fiscal deficit is there in spite of revenue surplus. Okay, yes, okay, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। कोई डाउट हो तो बताइएगा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। निशु मैम, आप एक बार वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या जो आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज कैन अ कंट्री हैव अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट द रेवेन्यू डेफिसिट? ओके ओके, फाइन, बिल्कुल सरकार। so, सर ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया नंबर्स देके कि ऐसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओके, अब होता है या नहीं? हाँ जी, प्रैक्टिकली, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू सरप्लस क्रिएट कर सके। राइट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा गवर्नमेंट बढ़ाना ही चाहेगी। क्यों बढ़ाना चाहेगी? गवर्नमेंट नई मनी क्रिएट करना ही चाहेगी हर साल। लास्ट टाइम जिन लोगों ने अटेंड किया था तब हमने देखा था कि एडिशनल मनी ग्रोथ के लिए कितनी जरूरी है। प्रमोद जी को ध्यान होगा। जी। वो जो एक एग्जांपल हमने लिया था जो मेरे को याद आ रहा है कि एडिशनल मनी के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता। यस।